Hello all of you, how are you all? Welcome to English by Joseph Ma'am, and you're watching Myra today, and this is my daughter Myra. Say hi Myra. How are you all of you? How are you? I'm fine. Thank you. Bye. She says bye. Because why today I introduced her today? Because I want you all to get encouraged, inspired, because she's just 1 year old. Next month, 18th June, she'll be completing 2. And I want, because I brought you in front of this, my baby, because she understands English and she's able to respond. That's what I brought an example. She's an example for you all. When a child can speak English, why can't you all speak English? She has nothing. My baby, she was like born. Then from that time only I started speaking to her small things. I used to nearly start talking to her. I was talking to her, and now she understands. No, she's not been to any school yet. She hasn't learnt any vowels, nothing, but still she knows ABC all. Myra, what is A for? Apple. Say loud. Apple. Apple. B for? Boy. C for? Cat. D for? Dog. E for? Apple. F for? Fish. G for? Goat. H for? And I for? ice cream. J for? Dog. K for? Cat. L? L for? Lion. Lion. Very good. Lion. M for? Monkey. N for? Nose. R for? Rabbit. N for? Nose. No. See, I confused her, but still she said the thing right. S for? Apple. S. Sheep. S for ship. T for? Can. U? You. U for? Umbrella. Umbrella. V for? Rain. Van. W for? Horse. X for? Telephone. Very good. X for xylophone, she said. Z for? Jeep. Zip. See, she said I taught her 2 things, zip and zebra. Now she remembers the 2 things. So whatever I've taught her, that she's recalled. And it's not that like she means I've told her, punched her. No, she keeps on speaking it. She keeps on. Now I'll show you something more. Now, okay. Myra, what is this? Mobile. This is a mobile. But she's not saying the full sentence, but she knows this is a mobile. See, the pronunciation is very clear. This is a Mobile. mobile. Very good, Myra. Thank you. What is this, Myra? Pen. Pen. See, she said pen. See the correct pronunciation she's saying. Okay. Next, Myra, what is this? Aloo. Aloo. What is another name? This is in Hindi. Indy. In English, what you'll say? Potato. Potato. Yes, see now. Because generally, I told you all, my background of my husband is almost in Hindi, and they usually keep talking to her in Hindi, but I keep talking to her in English. So mostly they say aloo, but I tell her, no, it's not aloo, beta. Speak in English. It's, what is this? Potato. Potato. It's potato. See, she's pronouncing it well. Potato. It is said potato. आप लोग potato बोलते हैं, words लोग potato बोलते हैं. That is wrong. Learn from Myra. She is saying potato. Okay. Now please give her a big clap for her also. Okay. Myra, what is this? Potato. No. Tomato. Tomato. This is tomato. Very good, Myra. Thank you. And what is this, Myra? Chili. Chili. Yes, chili. See, she knows when you eat chili, what happens. She's demonstrating and telling you all. आपको demonstrate करके बता रही कि चिली खाने से कैसे होता है. झाल जब लगती है, then how she feels. So give a big clap for her. Myra, what is this, Myra? Garlic. Garlic. See, she said garlic. आपको पता है इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं लहसुन, और इसको इंग्लिश में Myra is saying garlic. So learn from Myra. From today onwards, आप लोग उसको garlic बोलेंगे. Thank you, Myra. What is this? Onion. Onion. आप लोग बहुत से लोग उसको onion करेक्ट, आप लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, onion बोलते हैं, but it's onion. Okay, thank you, Myra. Very good, darling. Okay, what is this, Myra? Yeah, this better. Bottle. This is a bottle. आप लोग बोतल बोलते हैं ना, तो it's bottle. Okay. Thank you so much, Myra. And I just brought her before you today, that you should also learn. When she is learning, she has not been to any school, but still she knows things, she can recall, and she knows many things. Agar if I can say, like, she is anything, if you tell her, she remembers and she
स्पीक्स इट आफ्टर व्हेन शी इज़ प्लेइंग. जब वो खेलती रहती है तो उस वर्ड को इंग्लिश में रिपीट करती रहती है. नो, अगर मैंने कुछ गलत बोला है, अगर शी सेज रॉन्ग समथिंग इन हिंदी, आई जस्ट रिकॉल, नो बेटा इट्स नॉट दैट, इट इज़ दिस, शी सेज इट. So what I mean to say is, learn from Myra. Today Myra is here as a teacher and she taught you all something good to in pronunciation. बोलने में, उच्चारण करने में Myra ने help किया है. So all of you just appreciate her and say thank you to her, and that she should learn something more, and then next time she will come in front of you and she will all teach you all. So Myra, say thank you all of you. Goodbye. Say goodbye all of you. Go be food. Love you all. Hey, So bye bye. bye bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. What I have said, that she is speaking. So that is my main, what is my, like I can say, जो मेरा लक्ष्य था आपको इनके सामने लाने के लिए, मेरे अपने बच्चे को, कि आप लोग भी सीखिए. आप लोग स्कूल तो जा चुके हैं, आप लोग बड़े भी हैं, पढ़ भी रहे, बट अभी तो ये स्कूल भी नहीं गई है, बट शी नोज़ एवरीथिंग. सब चीज़ उसको पता है. अगर आप मेरा एक और भी ब्लॉग बना हुआ है जिस नाम से है, वेद अलाहाबादी के नाम से है, उस पर आप जाएंगे तो उस पर आप इनके बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. इंग्लिश में पूरा A to Z इसने बोला है, और भी पोएम इसने रिपीट किया हुआ है, और अपकमिंग में वीडियोस में मैं इसके भी मैं डालने वाली हूँ. सो उसके लिए आप देखते रहिएगा. वेद अलाहाबादी के नाम से है. सो थैंक यू मायरा. बाय. गॉड ब्लेस यू. ओके, God bless you. बाय बेटा. Bye. Okay, so what I meant to say, now you heard her speaking very fluently. The words, she didn't get stuck anywhere, and rapidly she started speaking. See, I am just confused her with alphabets also, but she again said the same thing correctly. So what I mean to say is, English is not a big, जैसे बोलते हैं ना, बहुत बड़ा हवा English नहीं है. English is very easy. You just need to listen and speak. You have to go on repeating the words over and over. Like as she says something, see, like she said aloo in Hindi. What I said immediately, I just changed her, checked her for that, and she said in English, potato. The correct pronunciation is potato. So my dear friends, today I brought before you, okay, this was an example जो आपके सामने मैंने लेके मैं आई हूँ, कि उसको आप रिपीट करिएगा तभी आपका अच्छा होगा, तभी आप फ्लुएंसी से बोल पाएंगे. So Myra has taught you something good today. Okay, so I need your comments that what was the outcome of it. मुझे इसका एक आउटकम मुझे चाहिए, इसका जवाब मुझे चाहिए कि आपने सुना और आपने क्या सीखा है मायरा से. तो प्लीज़ टेल मी, लेट मी नो. ओके, so today I brought before you kitchen vocabularies. किचन वोकैबलरी मीन्स जिस तरीके से आप किचन में जब काम करते, हिंदी में यू टॉक इन हिंदी, ओके, आटा को गूंद लो. हमको भी नहीं पता था कि नीट को हिंदी में गूंदना बोलते, मुझे पता नहीं था गूंदना बोलते हैं. सो आई शुड स्पीक इन इंग्लिश. ओके, सो वो मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या क्या हिंदी में जो आप किचन में आप काम करते हो, तो व्हाट यू कैन से, स्पीक इट अप, रिपीट एंड लिसन, एंड देन यू कैन ट्राई इट आउट. अगर आप किचन में हैं तो उसको आप सुनिए और उस वर्ड को रिपीट करिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. यू हैव टू लिसन एंड स्पीक. ओके, सो द फर्स्ट इज सिफ्ट द फ्लोर. फ्लावर क्या होता है? फ्लावर टू टाइप्स के होते हैं. फ्लावर्स ऑफ टू टाइप. एक तो फूल होता है. दिस फ्लावर आई एम टॉकिंग अबाउट आटा. कहते हैं आटा छान लो, सिफ्ट होता है छानना, उसका मतलब होता है छानना. सो सिफ्ट द फ्लोर, आटे को छान लो. आटा, मैदा, बेसन, ग्राम फ्लोर इसको बोलते हैं. सो उसको बोलते हैं, यू विल से इट सिफ्ट. नेक्स्ट इज, जैसे आपको चाय बनाने की, मेकिंग टी, अब चाय बना लो. व्हाट विल से, मेहमान आ गए, जाके चाय बना लो बेटा. सो मेक टी, मेक सम टी. और इफ़ यू ड्रिंक कॉफ़ी, मेक सम कॉफ़ी. हाँ, देन यू कैन से. अब छानने को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन. छानने को बोलते हैं स्ट्रेन. यू कैन से स्ट्रेन द टी. और इफ़ यू आर मेकिंग मैगी, मैक्रोनी को जब से छानते हैं तो उसको छानने को आप बोलेंगे स्ट्रेन. स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द मैक्रोनी, स्ट्रेन द चाउमीन. ओके, सो एंड मेक कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी बनाना. कॉफ़ी बना 2 कप कॉफ़ी बना दो या 4 कप कॉफ़ी बना दो. प्लीज़ मेक 2 cups of coffee. Please make 2 cups of coffee. And strain the tea. चाय छान लो, ऐसे बोलेंगे. You say that usually in Hindi. आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे. Strain the tea and bring. Strain the tea and bring. Strain. The word is strain the tea. Next is दूध उबाल दो. दूध वाला आया है. The milkman has come.
मैं आपको जनरल चीज़ें बता रही हूँ जो मैं रोज़ रोज़ में ये सब चीज़ें घर में मेरे होते रहता है. सो बॉयल द मिल्क, मिल्क वाला आया, मिल्क मैन हैज़ कम, नाउ आई एम गोइंग टू बॉयल द मिल्क. सो मिल्क, दूध उबालने को क्या बोलते हैं? बॉयल द मिल्क, बॉयल द मिल्क. बॉयल द वाटर, कोई भी चीज़ आपको उबालना है तो आप उबालने को बोलते हैं बॉयल द वाटर. बॉयल द पटेटोज, आलू उबाल दो. पापड़ बनाने आलू उबाल दो. सो बॉयल द पटेटोज, इट इज़ नॉट पोटैटोज, इट इज़ पटेटोज. बॉयल द मिल्क, बॉयल द वाटर, वट एवर. बॉयल, आप उसको वर्ड यूज़ कर सकते हैं उबालने को, बॉयल. नीड द फ्लोर, नीड मतलब आटे गूंदने को बोलते हैं, नीड. ओके, आटे को फ्लोर बोलते हैं, FLOUR, फ्लोर. रोल द डोग, डोग क्या होता है? आटा जो गूंद जाता है तो उसको क्या, वो एक लोई बन जाता है बड़ा सा, तो उसको फिर आप लोई बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रोल द डोग इनटू स्मॉल बॉल, मतलब लोई, छोटे छोटे लोई बना दो. आटे को गूंद लिया, अब उसकी लोइयाँ बना दो. मुझे भी नहीं पता था हिंदी में बोलते हैं. सो आई शूड स्पीक से दिस थिंग्स इन इंग्लिश. ओके, सो रोल द डॉग मतलब उसको रोल करके आटे को, जब आटे में फॉर्म हो गया बड़े से लोई में, फिर उसको क्या करेंगे आप? मेक इनटू स्मॉल डोग्स, छोटे छोटे गोले बना लो, बॉल, छोटे छोटे बॉल्स बना दो. मेक चपाती, रोटी बना लो. रोटी बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश में बोलते चपाती. सो आज के बाद आप सब जितने हाउस वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, सब बोलेंगे चपाती, रोटी को चपाती. डू यू वांट चपाती? रोटी और चाहिए? डू यू वांट चपाती? गिव मी 2 चपातीज. ठीक है, ऐसे बोलेंगे. 2 रोटी दे दो, 3 रोटी दे दो, प्लीज़ रोटी दे दो ज़रा. सो से दिस वर्ड इन इंग्लिश, चपाती. रोटी को बोलेंगे चपाती. रोलिंग द चपाती. अब कोई पूछा, अरे किचन में क्या कर रही हो? मैं एक रोटी बना रही हूँ. सो रोलिंग, रोटी बनाने को बोलते हैं रोलिंग, रोलिंग द चपाती. तो आपको जो बेलन होता है उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग पिन, वो आपका पटरा. सो रोलिंग द चपाती, रोटी बनाने को क्या बोलते हैं? रोलिंग, रोलिंग द चपाती. आप बोल सकते हैं आई एम रोलिंग द चपाती, मतलब मैं रोटी बना रही हूँ. पील द पटेटोज, पील को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? छीलना, छीलना. पील द पटेटोज और पील द अनियंस. देन पीस, पील द पीस. कोई भी चीज़ जो छीलने वाले हो उसको आप यूज़ करेंगे वर्ड पील, छीलने को बोलेंगे पील. तो आज के बाद आप पील बोलना शुरू कर दीजिए. और जो लोग मेरे नए चैनल में न्यू हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर को. जो आज आपने जो पढ़ा है उसको प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइए कि हाँ वाकई में ये सही है कि गलत है. मुझे कुछ कमेंट्स भी बताइए तो ताकि मैं आगे और चीज़ों के लिए इम्प्रूवमेंट कर सकूँ या और आपके लिए ला सकूँ. ओके, सो नेक्स्ट इज वॉश द डिशेस, मतलब बर्तने धो लो. किचन में, किचन जाओ, किचन में बर्तन धो लो, साफ़ कर लो किचन, ऐसे बोलते हैं ना. सो वॉश द डिशेस, बर्तन होते हैं. बर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूटेंसिल्स. वॉश द यूटेंसिल्स और वॉश द डिशेस. वी कैन से क्लीन द किचन, किचन को साफ कर दो. क्लीन द किचन, क्लीन द किचन. फिल द बॉटल, बॉटल भर लो. जो बोलते हैं बोतल, आप लोग अभी बोले ना, जो हिंदी में बोलते बोतलें भर लो. सो बॉटल्स, फिल द बॉटल्स with what? Fill the bottle with water. You can say fill the bottle with milk. अगर दूध है तो बच्चे का दूध डाल दो. fill the bottle with milk और fill the bottle with juice, whatever it is. Switch on the gas, गैस को स्विच ऑन करो, मतलब ऑन कर दो, गैस को चालू कर दो, खाना बनाने जाना है. स्विच ऑफ द गैस, हमेशा खाना बनाने के बाद स्विच ऑफ करना चाहिए. तो आप बोलते हैं ना गैस को बंद कर देना. सो स्विच ऑफ द गैस, स्विच ऑन द गैस. ब्लेंड द मसाला, ब्लेंड का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, मतलब मिलाना. जैसे आप आम का अचार बनाते हो तो उसको मिलाते हैं ना, सो ब्लेंड, उसको बोलते हैं ब्लेंड करना. गरम मसाले जितने होते हैं उसको आप मिला के फिर पीसते हैं. अब ग्राइंड, बात आता है ग्राइंड. ग्राइंड द मसाला, व्हाट इज, क्या पीसते हैं? पीसने को बोलते हैं ग्राइंड. ग्राइंड द मसाला, ग्राइंड द दाल, जो स्पाइसेस होते हैं आपके वो ग्राइंड करना. ठीक है, सो उसको बोलते हैं ग्राइंड. So for today, these are the words and you are going to use it for today. From today, आज से इसको use करना शुरू कर दीजिए. Till then, we'll meet again. So goodbye.